देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती देश भर में मनाई गई। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे कई नारों से देश की आज़ादी की लड़ाई में लोगों के अंदर नई ऊर्जा भर दी। नेताजी के 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में अ टॉक ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन लाल मौजूद रहे। गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया में लोग कभी भी और कहीं भी याद करते हैं। मैं नेताजी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नेताजी की टोपी के बारे में कहा कि यह आम टोपी नहीं है, इसमें बहुत ऊर्जा है। नेताजी की जिंदगी और उनका देश के लिए त्याग युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है। हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। प्रसिद्ध लेखक भुवन लाल ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। जब तक नेताजी रहे तब तक हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। नेताजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। उन्होंने नेताजी के बारे में बहुत सारी बातें और जानकारी साझा की। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया जिसमें कई लोगों ने भुवन लाल और संदीप मारवा से प्रश्न किए और प्रश्नों के जवाब पाए। कार्यक्रम में आए अतिथि डॉक्टर भुवन लाल को ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों को भी संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती द्वारा उपस्थित अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मॉर्निंग एवरीवन। आज हिमालय की चोटी से हमने तुम्हें पुकारा है, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। My dear friends, what a pleasure to be here this morning with all of you on this very auspicious day, the 126th birth anniversary of the great leader of India, Netaji Subhash Chandra Bose. I think there's hardly a person in this country who does not know him. Not only in India, but I think all over the world. The kind of a work, the kind of impression that single man has left to the whole world, it must be remembered every time and all the time. The cap which I am wearing is giving me new energy today because this cap has been handed over to me by the biggest organization which is working on the promotion of Netaji, and this is the same organization which presented this cap. Before handing over this cap to me, it was handed over to our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And trust me, this is the same organization which has also pursued the government of India to have Netaji's statue right into the India Gate, and you know that rest is a history. Well, I only know this, that when I read about Netaji, I was thoroughly impressed by the works of this man, and that persuaded me to get into forces. And I was probably a kid in my school. I immediately joined Scouts. I don't know how many of you were there in Scouts when you were in school. But then I joined Scouts, and throughout my school till 11th, I was in Scouts, and I rose up to the level of Major Sergeant Major, which is the highest designation any schoolboy can attain in Scouts in school. Because why I wanted to? Because I wanted to wear that Ashoka, because Sergeant Major used to get Ashoka to wear on his hand, and I was absolutely fascinated with that Ashoka too. When I joined college, the first thing which I inquired in my administration office was that if there is any NCC in college, and yes, it is, but still sleeping. And I revived the whole NCC setup in my college, Bhagat Singh College, Delhi University. And for all the 3 years in my college, I wore that uniform all the time whenever it was required for any other event. The Atlantic, as the submarine made its difficult path towards Madagascar.
where it was going to transfer the passengers, Abid Hassan and Subhash Chandra Bose, onto a Japanese submarine. In the history of Navy, this has never happened before. This was the first time in the world that passengers were being transferred from one submarine to another. For 3 days, the two submarines tried to come next to each other. It was impossible. The waves were 30 foot high. The German captain decided to turn around and go back to Germany. Netaji stopped him. He said, I have come this far. To return, I'll go forward. Finally, the two submarines were brought close to each other. With great difficulty, Netaji was transported. Suddenly, in the middle of the water, there were sharks. So both the German naval officers and the Japanese naval officers were firing at the sharks to kill them while Netaji was moving from a small boat from one submarine. सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए? कितने हजारों अनेकों लोगों की प्रेरणा रहे हैं। आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो में एक टॉक रखी है जिसको डॉक्टर भवन लाल ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस और एक्सप्लेन किया है। यही हम चाहते थे क्योंकि बहुत सारी रिसर्च उन्होंने कर रखी थी और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हमने शायद कभी भी किसी और किताब में नहीं पढ़ी होंगी। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मोहित मारवा ने राग देश में कर्नल सहगल का रोल अदा किया है और उस फिल्म को देखने के बाद मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था नेताजी का। नेताजी को 2016 में ये कैप मुझे दी गई थी और मैंने उसी दिन नेता सुभाष चंद्र बोस फोरम यहाँ पर AFT में शुरू किया था। हम चाहते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है वो हमारे बच्चों में पहुँचे और बच्चों में वही जज्बा, देश के प्रति जोश, लगन, मोहब्बत वो जो है वो हमेशा जागृत रहनी चाहिए कि जिस ओर चले हम मस्ती में झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के वाशिंदे हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। हमें देश को ये बताना है कि एकता और अखंडता में बहुत ताकत होती है और अगर हम सब लोग मिलजुल कर आगे चलेंगे तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। सर, जैसे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इन्फ्लुएंस हुए, तो सर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यही मैंने अभी बताया है कि अपने देश के प्रति मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर भाषण में, हर लेक्चर में एक ऐसा शब्द ज़रूर इस्तेमाल करता हूं जिससे मैं लोगों को ये बता सकूं कि मैं खुद एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियाटिक हूं और यही मैं चाहता हूं कि जब आपको अपने देश से मोहब्बत होगी, आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे, देश के लिए ज़्यादा और बेहतर काम करेंगे और आपके काम में हमेशा सफलता बनी रहेगी। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद भारत में याद कर रहे हैं, मगर एक ऐसा समय था जब भारत आज़ाद नहीं था और जो उन्होंने और क्रांतिकारियों ने और आज़ाद हिंद फौज ने करके दिखाया वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। आगे चल के हमें भारत को एक विश्व गुरु बनाना है और उस रास्ते पे चलने के लिए हमें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हमें योग्यता के साथ लेना पड़ेगा, हमें ईमानदारी से जीना पड़ेगा, हमें देश प्रेम को अपने जीवन का अंश बनाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है मगर हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद। सर, एक सवाल सर, नेताजी के बारे में आज भी उनकी मृत्यु का जो बारे में जो एक सस्पेंस बना हुआ है वो आज भी बरकरार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? सर, राष्ट्र समाचार से। अच्छा, ठीक है। तो नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद इस दुनिया में ना दिखाई दिए गए न सुनाई दिए गए। बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, वो कहानियाँ चल रही हैं, मैंने भी वो कहानियाँ सुनी हैं, मगर 30 साल की रिसर्च के अंदर मुझे तो कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये बताए कि 18 अगस्त के बाद नेताजी कहाँ थे।
सर, नेताजी ने बहुत से संदेश दिए, बहुत युवाओं को जागरूक किया, जी। लेकिन आज क्या समझते हैं कि युवाओं को दोबारा से उनको समझने की, विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल है। नेताजी नेताजी के संदेशों से नेताजी के 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। नॉन सेक्टेरियनिज्म, जेंडर इक्विटी एंड इकोनॉमिक इक्विटी। इन 3 रास्तों पे हमारे को चलना चाहिए और चल ही रहे हैं। देश अब आगे बढ़ चुका है। नेताजी हमारे लिए एक देश नायक है और हमें उनकी तरफ देख के, उनसे इंस्पायर होके अपना जीवन बेहतर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने हमारे पूरे बदन में एक स्फूर्ति और खून का दौर दौड़ा दिया है दोबारा। जो सच्चाइयाँ आज हमें पता चली हैं, कुछ पता चलने लग गई थी नेताजी के बारे में, उसने हमारी आंखें खोल दी हैं और रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इसको सुनने के बाद देश का कोई भी युवा अगर स्थिर बैठ जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये आज का जो छोटा सा कार्यक्रम बेशक था, पर जो था बहुत मायने रखता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई, भारत को आज़ादी कैसे मिली, भारत की आज़ादी के बीच में अड़चनें क्या थीं और सच्चाई क्या थी, अब पता चली है। थैंक यू सो मच सर।